clear? हेलो. So, good morning to all. हेलो. यस सर, स्टार्ट करें। आवाज आ मैं रही है आपकी। ठीक सर. वंदना मैम, वंदना मैम आपको आवाज आ रही है क्लियर? मुझे कुछ वंदना मैम. आवाज नहीं आ रही है। हेलो राकेश सर. हेलो। सर क्लियर आप सर वॉइस आ आ रही रही है है आपकी आपकी, आवाज? आप स्टार्ट कर आवाज दीजिए। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। हेलो हेलो. सर, आवाज यस क्लियर है? यस आप यस, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ सर, एक्चुअली में क्लियर है। 2 मिनट सर. वंदना मैम का सभी साथियों से निवेदन है, कनेक्टिविटी मोबाइल डेटा रखें। यदि डबल के ऊपर ही इसको रन करें। हेलो. जी सर। हेलो. आवाज आ रही है सभी को क्या? बिल्कुल आ रही है सर, वंदना मैम आवाज आ आवाज आ रही रही है। है आपको? 2 मिनट और टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है. 2 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं. वंदना मैम. मैडम हो गए ज्वाइन? अनिल शर्मा सर, अब आप म्यूट हो गए हैं। हाँ सर, थोड़ा सा सेटअप हो रहा है इसलिए. हो गया सर. अब आ रही है आवाज सर? जी सर। जी सर. वंदना मैम. वंदना मैम क्लियर आ रही है आवाज आपको? हेलो. हाँ नहीं सर, बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, 2 मिनट सर. ये वंदना मैम ज्वाइन हो रहे हैं. 2 मिनट आवाज उनको नहीं आ रही. मैडम आवाज आ रही है वंदना मैम? जी सर। ठीक. ओके सर. So let's start today's program. So first of all, good morning to all NDL member and authorities, and welcome respected principal sir, Dr. Paritosh Awasthi sir,
and senior professor and overall committee convener, Professor Vibhor Aaron sir. Before starting the event, I would like to call Professor Vibhor Aaron sir say about event and college. Sir. Thank you, Anil sir. It's a matter of great pride that with the great efforts of our Honorable Librarian Dr. Sanjay Purohit, we have started a club under National Digital Library of India. And this is the first program under that club. So I congratulate Dr. Sanjay Purohit madam and the convener of the library committee, Dr. Sakshi Motwani ma'am, for organizing such event, knowledgeable event that would help the entire academic fraternity. Shri Vaishnav College of Commerce is a 57 years old college, but still it's very new. New in all the aspects, all the events that it has been covering for the last 57 years. The institute is pioneer in adapting the latest change that has been brought out among the academics. There is a saying in English which says that blessing in disguise. That has been the concept when we have faced the pandemic corona, and after that the initiation that has been brought in the academics and in the knowledge industry, that was a major change. We have shifted from the offline teaching to online teaching. That was the concept of the present government also, to move on the online teaching and focus on the resources of ICT. And National Digital Library of India is one such initiative which has been launched by IIT Kharagpur and is providing all the academic resources which has been possible on the fingertips. With these type of events, when we are organizing events on this online platform, it provides an opportunity to interact not only with the people who have been very close to us, but also with the people who are far but of the same industry, of the same family. So I again congratulate NDLI for taking initiation for such a type of club activities. As we all know that when it comes on academics, research is one of the most important things, and the foremost goal of any academician is to prove itself, prove himself in the field of research. From the ancient times, when the civilization has been begun, तब से हम देख रहे हैं कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से विकास यात्रा प्रारंभ हुई है, तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिसर्च और रिसर्च एक्टिविटीज का काफी योगदान है। यदि हम मानव विकास की बात करें तो मानव विकास में यदि सबसे महत्वपूर्ण किसी एक शब्द की हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अ सिंगल वर्ड, देन इट इज अबाउट रिसर्च। एंड व्हाट ऑल रिसर्च इज? जिज्ञासा, हमारे मन में कुछ नया करने की इच्छा। यदि वह इच्छा, वह जिज्ञासा, वह डेडिकेशन हमारे पास में है कि हम अपने आप को प्रूव कर सके, कुछ इनोवेशंस लेके आ सकें, कुछ नया करने के लिए इस दुनिया को और बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो उसमें रिसर्च वाला जो पार्ट रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। ये रिसर्च का कॉन्सेप्ट देने के लिए बहुत सामान्य बात रहती है कि हम ये समझते हैं कि एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, पर ये रिसर्च की एक्टिविटीज उतनी जटिल भी नहीं है, उतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, और इसको और सरल बनाने का काम हमारे यहाँ के 3 प्राध्यापक ने करा है, जब उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि नवीन शोध कब, कैसे, क्यों। जो इस पुस्तक का सार है वो यह है कि कैसे हम किसी भी रिसर्च एक्टिविटीज के लिए अपने आप को इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे उसमें अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम हम सभी एकेडमिशियंस के लिए रिसर्च की ओर मार्ग प्रशस्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा,
मैं तीनों ऑथर्स को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनके द्वारा Please. रचित यह पुस्तिका हम सभी का ज्ञानवर्धन करेगी। धन्यवाद। अनिल सर प्लीज। थैंक यू सर। अभी जस्ट हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर परितोष अवस्थी सर ने ज्वाइन किया है। सर अगेन आई वेलकम टू दिस इवेंट। थैंक यू सो मच सर गिविंग दिस टाइम। So let's start next process. So we are organizing today's event on the subject of an intellectual talk with authors on advanced research under the aegis of National Digital Library of India NDLI. This club, one of the largest digital repositories of the world, designed and developed by IIT Kharagpur, available 24/7. A single door search facilities covers all academic level and आवाज नहीं आ रही। अनिल सर आपका माइक जो है सभी आप चीजें एक बार आपका सिस्टम चेक करें मैडम, क्या आपका करें। आवाज नहीं आ रही। hello, am I audible everyone? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. यस सर, Okay, आवाज आ रही। thank you. So a single window search facilities cover all academic level and disciplines, multi languages user interface, currently available in Hindi, Bangla, Gujarati, Marathi, Tamil, Kannada, Odia, Telugu, and more languages are available in this platform. So now with us today, authors and speaker, Dr. Vandana Mishra ma'am and Dr. Rakesh Upadhyay sir. Sir, I heartily welcome to both authors. And now let's start the event and let's invite first author, Dr. Vandana Mishra ma'am. She is poet and writer and received Nari Ratna, Teachers of the Year and Women Empowerment Awards in various years, and also very well versed in writing poetries, short stories, and novels. So I would like to call Vandana ma'am to present our thoughts on this event. Vandana ma'am. धन्यवाद सर। कहते हैं कुछ नया सृजन। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? मेरी Yes, आवाज ma'am. सुनाई पड़ रही है? आपकी बिल्कुल क्लियर है। जी। आ रही है आवाज। से कुछ नया सृजन, नई दृष्टि का निर्माण करना है तो सर्वप्रथम हमारा संबंध होता है वाणी से। वाणी के बारे में एक बात कही जाती है कि कहने से पहले सदा करना सभी विचार, मुख से निकली बात पर होता ना अधिकार। और वाणी का संबंध होता है शब्द से। शब्द कहते हैं, शब्द जो होते हैं वो यात्रा करते हैं। शब्द की यात्रा आदि से अनंत तक चलती है, इसलिए शब्दों का प्रसार बहुत तेजी से होता है और एक एक शब्द से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य से बनती है एक पुस्तक, और इस यात्रा को ही हम एक शोध कहते हैं। तो धन्यवाद सर। आज बड़ा सुअवसर व सम्मान का विषय है कि हम नव लेखकों के लिए, जिसमें पुस्तकालय एवं NDN क्लब के द्वारा एक वक्ता के रूप में हमें आमंत्रित किया गया है। आज की इस बौद्धिक परिचर्चा में हम और आप शामिल हैं। हम तीनों लेखकों के द्वारा शोध के क्षेत्र में कुछ नया करने का छोटा सा प्रयास किया गया है, जिस पर हमने एडवांस रिसर्च पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नवीन शोध, क्या, कब और कैसे। इसमें मेरे साथी लेखक डॉक्टर राकेश उपाध्याय, डॉक्टर अलका कशाबा, हम सबके आपसी तालमेल व सहयोग से इसका लेखन कार्य किया गया, जिसका हाल में ही विमोचन महाविद्यालय परिसर में किया गया हमारे प्राचार्य महोदय और मेरे साथियों के द्वारा। उन सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आइए अब हम बात करते हैं पुस्तक से जुड़े कुछ रोचक विभिन्न आयाम
व्यायामों की, जिसका शीर्षक हमें ये बताता है कि शोध या रिसर्च हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये नवीन शोध इसलिए भी है क्योंकि इस पर शोध कार्य करने वाले जो लेखक हैं वो विभिन्न भाषाओं से अपना संबंध रखते हैं, जिसमें डॉक्टर राकेश उपाध्याय जो कि एक कंप्यूटर के प्राध्यापक हैं, डॉक्टर अलका कशाबा जो इंग्लिश की प्राध्यापक हैं, और मैं एक हिंदी की प्राध्यापिका हूँ। इसलिए अपने आप में एक नवीन शोध है। हम 3 अलग अलग भाषाओं से जुड़े लोगों ने इस शोध को तैयार किया है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान है हमारे प्राचार्य डॉक्टर पारितोष अवस्थी सर एवं हमारी सुंदर सी लाइब्रेरी का, जहां पर आपको मिलेगी कितनी ज्ञानवर्धक पुस्तकें एवं कई रिसर्च बुक, कई थीसिस, कई जनरल, कई रिसर्च पेपर, क्योंकि हमारा महाविद्यालय रिसर्च सेंटर भी है और जहां पर हमें अभी तक कितने ही रिसर्चर ने अपनी थीसिस की डिग्री प्राप्त की है। एक गौरवान्वित बात करने वाली बात यह भी है कि हमारे यहाँ 98% प्राध्यापक रिसर्च के निर्देशक हैं, जो अपने आप में हमें गौरवान्वित करते हैं और हमें मोटिवेशन भी देते हैं। आइए अब इस पुस्तक पर थोड़ी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। एक राजा था। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से बुलाकर कहा कि ऐसा करो, ये जो सड़क जा रही है इस सड़क पर कुछ पत्थर और चट्टाने डाल दो। मंत्री को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसा राजा है, पर चूंकि राजा था उसकी बात तो माननी थी, तो उसने राजा की बात मानते हुए उस पर कुछ पत्थर और चट्टाने डाल दी। और राजा ने कहा कि ऐसा करना, जब डालने के बाद तुम उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना कि किसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। मंत्री और उसके कुछ सदस्य थे वो चुपचाप चुप होकर बैठ गए। अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है मैडम। जी जी जी। तो वो छुपकर बैठ गए। अब रोज कोई ना कोई निकलता, कोई तो बचकर निकल जाता, कोई दूर से ही देखकर भाग खड़ा होता कि अरे बड़ी चट्टाने पड़ी है, और वहां से गायब हो जाता। कुछ लोग प्रशासन को कुछ गलत कहते, गाली बकते, कुछ गलत बोलते कि कैसा राजा है, यहाँ से चट्टाने नहीं हटा रहा है और कैसी इसकी प्रशासन क्षमता है, इस तरह से प्रशासन को कोसते। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। एक दिन एक बैलगाड़ी वाला जो कि कुछ सब्जियां रखकर उसमें लेकर आ रहा था, उसने देखा कि यार इतनी बड़ी पत्थर और चट्टाने पड़ी, इससे कितनी समस्या आती होगी लोगों को। उसने अपनी गाड़ी को रोका और अपनी गाड़ी और अपने बैल और उन सबके माध्यम से उस चट्टानों को हटाने का प्रयास करा। धीरे धीरे उस चट्टानों जो पत्थर थे वहां से हटा दिए। और एकदम आराम की मुद्रा में जब वो बैठा थक कर, तो देखा कि वहां पर एक सोने की मुद्रा से भरी थैली रखी हुई थी और उस पर एक राजा की तरफ से एक मैसेज लिखा था कि तुम वो व्यक्ति हो जिसने समस्या के समाधान में अपना कोशिश करी, उसका प्रयास करा। और नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं समस्या को देखकर या तो भाग भाग खड़े होते हैं या साइड से निकल जाते हैं, लेकिन तुम वो व्यक्ति थे जिसने उस समस्या को समझा और उसको सुलझाने का प्रयास किया। तो समस्या शोध का पहला समाधान है कि जब जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है वहीं से हमारा शोध प्रारंभ होता है। तो अब मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगी। ये पुस्तक है जिसका नाम है नवीन शोध, क्या, कब और कैसे। पुस्तक को हम तीनों लेखकों ने 5 भागों में बांटा है। 5 भाग में पहला भाग जो है जिसमें शोध परिचय है, जिसमें आपको शोध का अर्थ है, शोध की परिभाषा है, शोध के प्रकार हैं, शोध के उद्देश्य हैं और शोध के सोपान हैं कि कितने स्टेप में ये मेरे द्वारा लिखे गए हैं। अगला आपको टेक्निकल शोध में तकनीकी का उपयोग, जो अगले लेखक होंगे वो आपको बारे में बताएंगे। उसका अगला पार्ट है साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म, जो हमारी तीसरी लेखक है, लेखिका है, उन्होंने उसके बारे में बताया है। और उसके चौथा पार्ट है वो भी मेरे द्वारा लिखा गया, जिसका है शोध पत्र कैसे लिखें। तो पहले पार्ट में तो हमने सिंपल रखा है कि शोध का अर्थ क्या होता है, शोध की परिभाषाएं दी है, शोध का उद्देश्य बताए हैं, शोध के दृष्टिकोण बताए हैं, शोध में नवाचार हम कैसे कर सकते हैं ये हमने बताया है। उसके बाद शोध को कैसे स्टेप में पूरा किया जाता है और इसके शैक्षणिक उपयोग क्या हो सकते हैं ये बताया। उसके बाद अब बारी आती है शोध पत्र कैसे लिखें। इसमें हमने ये बताया कि जो रिसर्च पेपर होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं, इसके अलावा उन्हें कैसा होना चाहिए और उनके
उसके प्रकार कितने होंगे, शोध पत्र कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, शोध का प्रारूप क्या होगा, शोध लिखा जाएगा और शोध पत्र के गुण, ऐसे कई छोटी छोटी चीजों का समावेश किया है। साथ ही मेरे मेरे अन्य साथियों के शोध पत्र का इसमें आपको कुछ नमूने हैं। ये इसमें एक नई चीज है जो हमने देने का प्रयास किया है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही है। सेठी सर, आप जो है अनम्यूट म्यूट वाला सिस्टम हटा दीजिए, हम खुद ही अपने हिसाब से कर लिया करेंगे। आप वहां से वो ऑप्शन हटा दें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ गई है। जी, तो मैं पूरी किताब पढ़ना तो संभव नहीं है मेरे लिए, समय की सीमा है। मैं इसकी जो भूमिका है वो आपके सामने रखना चाहूंगी कि वास्तव में सफलता क्या है, ये कब से प्रारंभ होती है, इसका स्पष्ट आकलन करना संभव है कि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के सफलता के मायने अलग होते हैं। उसी प्रकार जिज्ञासा, कौतूहल की आवृत्ति जिसमें जितनी अधिक होती है वह उतना सफल व्यक्ति कहलाता है। सफलता की परिभाषा सबकी अलग हो सकती है। इसी प्रकार अगर शोध अन्वेषण की बात करें तो कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि शोध कब से, किस उम्र से प्रारंभ किया जाए, शोध की कोई उम्र है भी कि नहीं, ये किसी भी उम्र में किसी भी उम्र तक किया जा सकता है या नहीं, ये सब आपको ये किताब बताएगी। अब बात आती है कि नवीन शोध की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए। इसके लिए शोध की अवधारणा को समझना होगा। शोध शब्द का अर्थ ही होता है कि पहले से जो है उसी पर कुछ नया सोचना। सर्वप्रथम एक शोधकर्ता को चाहिए कि अगर उनके मन मस्तिष्क में कोई पुस्तक, लेख पढ़ते पढ़ते किसी विशिष्ट पात्र, घटना को लेकर कौतूहल होता है तो उसे उस दिशा में शोध कार्य करना चाहिए। कई बार जब किसी घटना या शोध को देखते हुए उसमें कुछ तथ्य पर हम सहायता लेते हैं या सहमत नहीं होते हैं, ऐसे में हमें उस दिशा में दोबारा कार्य करना चाहिए। एक बने बनाए मार्ग पर ना चलकर कुछ नया करना ही शोध की श्रेणी में आता है। हमें शोध को भारत की संस्कृति का हिस्सा बनाना चाहिए। सच को जानने का प्रयास ही शोध है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना भी अनुसंधान है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में शोध का बहुत महत्व होता है। परिणाम को जानने की जिज्ञासा ही शोध की प्रक्रिया को जानने की इच्छा होती है। धीरे धीरे इनकी जड़ों को जानने का प्रयास करना। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द बना जिसका नाम है रिसर्च, यानी जो पहले से मौजूद है उसको दोबारा खोज करना। हमारे यहाँ पर पहले आश्रम व्यवस्था थी, उसमें अंतिम आश्रम था संन्यास आश्रम, जिसमें शोध का सीधा संबंध था। सन्यासी क्या करता है? सन्यासी शोध करता है, उन बातों का शोध करता है, उन चीजों का या जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती वह उसे शोध द्वारा प्राप्त करना चाहता है। वह किसी प्रतीक के सामने बैठकर, प्रकृति के सामने निकट बैठकर, जंगल, पहाड़, गुफा, नदी या पेड़ के मध्य होकर शोध कार्य करता है। वह शोध करता है सत्य का। इसलिए हमारे यहाँ सत्य से साक्षात्कार करना ही साक्षात्कार का परिणाम है अर्थ। अंत पर हम कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, ये सब शोध का विषय है। अगर होता है तो क्यों है, यह विज्ञान, धर्म व दर्शन का आधार है और यही शोध ही धर्म का मर्म है। दुनिया में ऐसे धर्म जीवित रहते हैं जो लगातार शोध कार्य करते हैं। समय अनुकूल परिवर्तन करने ने दुनिया को ऐसे धर्मों से पीड़ा, कष्ट और विभत्स रूप दिया है जिन्होंने शोध में कोई स्थान नहीं दिया, जो जड़ हो चुके ग्रंथ को उबारने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये पुस्तक नवीन शोध करने वाले को अवश्य ही एक नई दिशा प्रदान करेगी, ऐसा मैं
आप सबसे आशा करती हूँ। धन्यवाद। Our next author and Done. yes, sir. Our next author and speaker, Dr. Rakesh Upadhyay, sir. He is the IT expert, subject expert of Jilla Rozgar Office, MP Government Employment Department, awarded for Golden Book of World Record, IT consultant firm, editor of International Research Journal of Computer Science, and CEO Goodwill Infotech Indore. Sir, I would like to call to invite Rakesh sir to present on this event. Rakesh sir. Thank you, Anil sir. First of all, thank you, Principal sir, Librarian Convener Dr. Sakshi Motwani ma'am, Sadhya Purohit ma'am, and all my colleagues. My topic is what is the research and research होता क्या है, इसको लेके हमने जो बुक्स को किया है उसमें टेक्निकल पार्ट जो था वो मैंने इस बुक्स को के अंदर मैंने समाहित किया। तो रिसर्च के जो फील्ड है उसको मैंने बड़ी चीज जो होती है उसको छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसको हमने ध्यान लगाया। रिसर्च का मीनिंग होता है सर्च अगेन, बार-बार स्क्रीनशॉट ले लेना। उसको मत करते रहे। ये थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हो स्क्रीनशॉट ले गया। तो देन रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमको हाइपोथेसिस मीनिंग होता है तर्कपूर्ण सुझाव। हमारे सुझाव तर्कपूर्ण तो हम के लिए MS एक्सेल वगैरह, तो इसमें हमारे IT सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर की फील्ड के आप जो है टूल्स का यूज करके ही हाइपोथेसिस को पूर्ण कर सकते हैं। मैं इसमें मेरी जो लेखिका है पहली वंदना मिश्रा मैम, उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उनकी जो कहानी थी उसी कहानी को लेके हाइपोथेसिस किस टाइप की होती है, कैसे हम हमारे क्या तर्कपूर्ण सुझाव होते हैं। जैसे न्यूटन का नियम है कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, तो उसने कैसे पता किया, जब वो नाव से उतरा तो नाव पीछे की साइड गई, वो इधर गया। आप बस से उतरेंगे तो बस इधर है, आपका गतिमान शरीर इधर है। देन वहां पे उनने ये एनालिसिस करी परिकल्पनाएं जो थी उसको साकार करते हुए रिसर्च के आगे व्यक्ति बढ़ा है। इसका एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक राजा थे। तो राजा के यहाँ पे उन्होंने 2 चोर पकड़ के लाए। वो 2 चोरों ने चोरी की हुई थी। तो चोरों को जब उन्हें राजा ने पकड़ा और राजा ने देखा कि इनका जो दंड है वो अक्षम्य है, तो उन्होंने बोला कि इन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। जब मृत्यु दंड देने की बारी आई तो उसमें से एक जो चोर था वो थोड़ा सा रिसर्चर स्टाइल में था। तो उसको ये जानकारी मिल चुकी थी कि राजा को अपने घोड़े से बहुत प्यार है। तो वो जो एक चोर था उसने धीरे से बोला कि सर अगर आप बोले हैं और मेरी तरफ ध्यान दें तो मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं। तो सारा दरबार चौकन्ना हो गया, सब एक दूसरे से बात करने लगे। बोले घोड़ा तो उड़ ही नहीं सकता। राजा एक पल लिए रुके, बोला कि बताओ अच्छा कितने में घोड़ा कैसे तो मन लगेंगे सर। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं 2 साल के लिए आपको छोड़ता हूँ और घोड़े के साथ आप रहिए और घोड़े को उड़ाइए। यह सब उसका साथ वाला दोस्त देख रहा था। उसने धीरे से इनको बोला कि क्या तुमने तो 2 साल का एक्सटेंशन ले लिया, अब मेरा भी एक्सटेंशन करो, मुझे भी बचाओ। तो राजा को पहले चोर ने वापस बोला कि सर अगर आप चाहें तो मैं इसका समय कम कर सकता हूँ, मैं 1 साल में भी इस घोड़े को उड़ा सकता हूँ, पर इसके लिए शर्त ये कि मेरे दोस्तों को भी आप इसमें मेरे साथ हैं, तो हम दोनों मिलकर इस घोड़े को उड़ाएंगे। ठीक है, राजा ने बोला ठीक है 1 साल आपको दिया, आप अपने इस घोड़े को आपको उड़ा के बताएंगे। यह पहला यहाँ पे हाइपोथेसिस हुई है कि जो
तर्कपूर्ण सुझाव था कि आपकी मृत्यु होने वाली थी कल सुबह, लेकिन आपने अपने जीवन का 1 साल राजा से ले लिया, दोनों ने ले लिया। जब दोनों को घोड़े के साथ छोड़ा गया तो दोस्त ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि घोड़ा उड़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि घोड़ा नहीं उड़े, पर ये अपना क्या होगा 1 साल बाद। तो पहले व्यक्ति ने 4 बातें बोली कि 4 चीजों को आप याद रखिए कि या तो पहली चीजों की 1 साल के अंदर राजा मर जाए तो भी काम हो जाएगा, दूसरी अगर अपन चीज देखें तो घोड़ा भी मर सकता है, तीसरी अपन उस पर निकले तो हम भी मर सकते हैं 1 साल बाद, और चौथा अगर बात करें तो घोड़ा उड़ना भी सीखता है। तो ये 4 अलग अलग बातें जो थी, इन चारों को तथ्य को निकाल के अपन हाइपोथेसिस की ओर बढ़ सकते हैं। ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताया था। आज टेक्निकल की करेंगे, मैंने टेक्निकल का फील्ड इसमें पूरी तरीके से समाहित किया था। तो टेक्निकल के अंदर अगर अपन चलेंगे तो आप देखेंगे कि एनालिसिस होती है, जैसे रेशो एनालिसिस है, प्रॉफिट एनालिसिस है, इनको आप अगर चाहेंगे तो टेक्निकल की मदद से अपन करेंगे। उसके बाद टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, क्या टेस्ट, टाई टेस्ट है। ये टेस्ट के बीच में भी हमारी इसको जरूरत पड़ती है। आप अपनी फील्ड को बहुत ही आसान तरीके से, मैनुअल और ऑटोमेटिक 2 सिस्टम होते हैं। अगर आप मैनुअल की तरफ चलेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, और समय के साथ साथ आपकी मेहनत भी ज्यादा होगी। और अगर आप टेक्निकल फील्ड की तरफ जिसको लेके चलेंगे तो आपका समय की बचत भी होगी, और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। रिसर्च में एक छोटे गांव से आया हुआ हूँ, मैंने तो बचपन में कभी सुना ही नहीं कि रिसर्च ऐसी होती है। ये जब बुक हमने लिखी तो इस बुक से मैंने ऐसा समझा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते पढ़ते तो बुक इसलिए हमने बनाई कि थोड़ा सा एक रिसर्च के प्रति लोग थोड़े से जागरूक हो, थोड़ा सा रिसर्च कैसे करें, कैसे आगे बढ़े। इसको हमने सारे इसके पॉइंट्स वाइज हमने 5 पार्ट में इसको बांटा है, जो आप बुक को देख सकते हैं। बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, और वो फ्री ऑफ चार्ज भी है, ई किनले पे। नेशनल लाइब्रेरी है अमेजोन की, उससे आप इसको फ्री पढ़ सकते हैं बुक को, और आप आराम से इस बुक को समझिएगा। तो ये एक मेरा थोड़ा सा मानना था कि रिसर्च व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। हर चीज के अंदर रिसर्च की महत्ता है, लेकिन रिसर्च हमेशा तर्कपूर्ण रहे। रिसर्च हमेशा सुझाव के साथ और तर्कपूर्ण होगी तो ही आपकी रिसर्च मानी जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ, और थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश सर। सर कुछ क्वेश्चंस जो है आए हैं सर प्रतिभागियों की ओर से। मैं उपस्थित हमारे माननीय माननीय दोनों ऑथर से पूछना चाहूंगा। तो सर मैं क्या पूछ सकता हूँ मैम? एम आई ऑडिबल सर सर मैम? सर 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 मेरा क्वेश्चन सर आपसे था कि सर आपने जो पुस्तक है, जो नवीन शोध आपने लिखा है सर, तो मैं पूछना चाहूंगा ये क्या कुछ स्पेशल इन लोगों के लिए बेनिफिटेड है या सभी के लिए बेनिफिटेड है सर? एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है सर। अनिल सर, देखिए क्वेश्चन जो है वो बेनिफिट आपने बताया। मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान जो है वो लेते रहना चाहिए सबसे। तो ये कोई एक किसी क्राइटेरिया में बटा हुआ रिसर्च की बुक नहीं है, ये सभी के लिए है। जैसे अगर घर पे खाना बनाने के अगर अपन रिसर्च की बात करें तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों को भी सीखना पड़ रहा है। और आजकल तो बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो बच्चे भी खाना बनाना सीख रहे हैं। तो एक तरीके से कॉमन और ग्लोबल चीज हो चुकी है ये। तो मेरे हिसाब से ये रिसर्च कोई केवल रिसर्च की बुक केवल स्टूडेंट के लिए या रिसर्चर के लिए ना होकर ये सभी आम आदमी को भी करना चाहिए। कि जो आज का जनरेशन है वो ऑटो अपडेशन पे चल रहा है, आपको नित नए अपडेशन मिलते रहना चाहिए। अभी आप गूगल पे अगर किसी चीज को सोच के अगर आप उसको सर्च करेंगे तो उसके 100 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि पहले ऐसा बोलते थे कि आवश्यकता आविष्कार की जन्म है, लेकिन आज इतने आविष्कार हो चुके हैं
कि उनको आवश्यकता है कि वो कहाँ तक लोगों तक पहुंचे। तो ये मेरा मानना है कि सबके लिए बेनिफिशियल है और सबको ये पढ़ना चाहिए इस तरह से। थैंक यू सो मच सर। सर अगला मैडम अगला क्वेश्चन आपके लिए आया है मेरे पास पार्टिसिपेंट की ओर से। वंदना मैम सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी सर, जी सर। जी सर। मैम एक प्रश्न आया है कि आपने जो पुस्तक का नाम है क्या कब और कैसे, तो पार्टिसिपेंट पूछना चाहते हैं आपने ये क्या सोच के नवीन शोध में इसको रखा है? हाँ, कई बार क्या होता है, जो नए शोध करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि शोध करें कैसे। नाम तो बहुत सुनते हैं शुरू से, पर उनको उसका अर्थ नहीं मालूम होता। तो इसलिए हमने इसको रखा कि भाई आप कैसे क्या करें, करना क्या है, आपको समस्या कैसे पहचाननी, कब करना चाहिए। शोध की कोई उम्र नहीं होती। आप छोटी सी उम्र से भी 15, 14, 15 साल, 12 जब बच्चे की एक समझ बढ़ जाती है, तब से वो रिसर्च कर सकता है। और कैसे करें ये हमने प्रोसेस बताई है, कब करना है। इसके लिए कोई, मैंने बताया कि उम्र का बंधन नहीं होता, हम कभी भी कर सकते हैं। शोध के लिए कोई उम्र नहीं होती। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की अगर दादी और नानी सबसे बड़ी रिसर्चर थी, कोई पढ़ाई नहीं करी थी लेकिन वो अपने क्षेत्र में पीएचडी थी। एक किसान होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन जब आप उससे बीज के बारे में पूछोगे ना, तो वो एक इतना अच्छा रिसर्चर होता है कि एक रिसर्च करने वाला भी नहीं होगा जितना अच्छा रिसर्चर वो कहलाता है। तो रिसर्च के लिए कोई मायने नहीं होते, कोई उम्र नहीं होती। इसको हम किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हैं, इसमें हमने यही बताया। ओके। सो सर मैडम क्वेश्चंस तो बहुत हैं, सर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं पर टाइम का लिमिटेशन। जी सर। जी जी। मैं मेरा मेल आईडी अनिल सर इसमें दे दूंगा, तो जो भी क्वेश्चन हो वो आप वहाँ पे मुझे सेंड करवा दीजिएगा, क्योंकि अभी इतना समय भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। साक्षी मोटवानी मैम, साक्षी मैम। Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning to all. I, Dr. Sakshi Motwani, feel honored and privileged to propose a vote of thanks on behalf of Sri Vaishnav College of Commerce on this wonderful event. Firstly, I wholeheartedly thanks to Ministry of Education and IIT Kharagpur for providing such an amazing platform to all the educators, learners, and students for sharing and enhancing their knowledge. I express my sincere thanks to all the honorable members of management team of Sri Vaishnav College of Commerce, who always encourage us to organize such kind of directional programs. I thank to Honorable Principal Sir, Dr. Paritosh Avasthi ji, who always stand along with us as a great supporter. I extend my warm thanks to the overall committee convener and most senior faculty of the institution, Professor Vibhor Eren sir, for his remarkable words. I extend my heartfelt thanks to both the speakers, Dr. Vandana Mishra ma'am and Professor Rakesh Upadhyay sir, who has spent their valuable time for today's program and also guided and encouraged us that how to conduct a relevant and socially useful research for the country. And last but not the least, I thank to all the professors and the staff members of institution for their contribution. Thank you, everyone. हाँ।